So today's topic is about Benjon protein. I hope you have idea about Benjon protein, okay? Because this is not a first class for you people. So before that, one important thing, Benjon protein. Name थोड़ा अलग सा है ना? तो there is a scientist, okay, British nephrologist. उसने discover किया था इस protein को. That's why इसका नाम है Benjon protein. Nephrologist का नाम था Benjon Henry. Benjon Henry, a British nephrologist who discovered this protein. That's why it is known as Benjon protein. Okay. Now, before analysis, you have to know what is Benjon protein, right? So, can anyone tell me what is Benjon protein? Okay. So, what is Benjon protein? Why you perform Benjon protein analysis? Do you have any idea? Please respond yes, no. Do you have any idea about Benjon protein? No, ma'am. No, ma'am. Why? This is not your first class, right? Nazma, I have already completed this topic. Okay, fine. See, normally Benjon protein in urine test, normally we perform this test to diagnose or monitor multiple myeloma. Okay, there is a condition known as multiple myeloma. Mainly उसी के लिए हम लोग Benjon protein test करते हैं. It is one type of blood cancer. ठीक है? So before that, you have to know something about like blood cells, multiple myeloma, right? So what happened in healthy person, in normal individual, in our blood there is cell that is known as plasma cell. Okay, it is very important. Listen carefully. Okay, in normal individual or healthy person there is a cell known as plasma cell. Okay, it is a one kind of blood cell which produce antibody in our body, and we all know what is the function of antibodies, right? Antibodies protect our body from foreign particles. It acts as a defense mechanism, right? So in our blood there is a cell known as plasma cell which are responsible for the production of antibodies. But in case of multiple myeloma, what happened? जितना भी प्लाज्मा सेल होता है वो क्राउडेड होता है. दैट मीन्स एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस होता है, कैंसरस प्लाज्मा सेल. ठीक है, जितना भी नॉर्मल प्लाज्मा सेल होता है नॉर्मली, बट इन केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा सेल जो भी है वो क्राउडेड होगा. दैट मीन्स वो एबनॉर्मल होगा, कैंसरस होगा. और वो कैंसरस प्लाज्मा सेल जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे वो भी एबनॉर्मली होगा. ठीक है, तो फ्रॉम दैट एंटीबॉडी हम लोग को ये बेंजोन प्रोटीन मिलेगा. So before that, you have to know one thing. I think you all know the structure of antibody. Structure पता है antibody का? This is the structure of antibody, immunoglobulin. ठीक है, there are so many type of antibodies in our body like IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, etc. Okay, this is the basic structure of antibody or immunoglobulin. In this structure, these are known as light chain and these two are known as heavy chain. ठीक है, ये जो है ये heavy chain बोलते हैं उसको, और यहाँ पे जो है वो लाइट चेन बोलते हैं. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन. ऊपर का ये वाला पोर्शन को हम लोग लाइट चेन बोलेंगे और ये वाला पोर्शन हैवी चेन है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट चेन, वन इज कप्पा एंड अनदर इज लैम्डा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेंजोन प्रोटीन, इसीलिए मैं बोल रही हूँ. ओके, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज. जो प्लाज्मा सेल नॉर्मली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका ये स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग लाइट चेन और ये वाला है हैवी चेन. लाइट चेन दो है, एक है लंबा और एक है कप्पा. ठीक है, दिस टू आर लाइट चेन. सो इन केस ऑफ बेंजोन प्रोटीन
जो एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडी, इन दैट केस व्हाट हैपन, they produce monoclonal antibody. That monoclonal means identical, ठीक है, identical copies of antibody. और these antibodies are harmful and ineffective. That means वो किडनी के लिए, किडनी को डैमेज भी कर सकता है, और ये फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट में फाइट नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी कैंसरस प्लाज्मा सेल जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, वो एंटीबॉडीज आर हार्मफुल, ठीक है। दे कैन डैमेज द किडनी ऑल्सो एंड दे डू नॉट फाइट अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। एंड दैट्स वाई इन केस ऑफ बेंजोन प्रोटीन, जो एंटीबॉडी है उसमें सिर्फ लाइट चेन होगा, ठीक है। जो कैंसरस प्लाज्मा सेल, जो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, वहां पे सिर्फ हम लोगों को ये दो चेन मिलेगा, दैट मीन्स लाइट चेन मिलेगा इन दैट एंटीबॉडीज। एंड benzoin protein are nothing else, these are the light chain part of the monoclonal antibodies. That means benzoin protein are this part, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बोला इट इज द प्रोटीन light chain or light part of the monoclonal antibody. Suppose this is an antibody, ठीक है, abnormal antibody, okay. So we all know we have two light chain and this heavy chain, okay. So benzoin proteins are the light chain, ठीक है, of the monoclonal antibody. Oh, what happened? Just wait, okay. Okay. तो मैंने क्या बोला है अभी, बेंजोन प्रोटीन कौन सा है, बेंजोन प्रोटीन है लाइट चेन ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। दैट मीन्स एंटीबॉडी का जो भी लाइट चेन वाला पार्ट होगा दैट इज नोन एज बेंजोन प्रोटीन, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ योर बेंजोन प्रोटीन। तो ये कहाँ से फॉर्म होता है, दे आर इन नॉर्मली इन हेल्दी पर्सन देयर इज सेल दैट इज नोन एज प्लाज्मा सेल। हेल्दी पर्सन में एक सेल होता है उसका नाम है प्लाज्मा सेल, और वो प्लाज्मा सेल नॉर्मली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा क्या होता है, वहां पे जितने भी प्लाज्मा सेल होता है वो कैंसरस फॉर्म का होता है, दैट मीन्स दैट इज एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लाज्मा सेल, ठीक है। अगर प्लाज्मा सेल ही एबनॉर्मल हो गया तब को जो एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करेंगे वो भी एबनॉर्मली होगा, दैट इज नोन एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। जो प्लाज्मा सेल इन केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा में प्रोड्यूस होता है उसका नाम होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। दैट मीन्स मल्टीपल सॉरी माइलोमा ट्यूमर्स, माइलोमा ट्यूमर मीन्स दैट क्राउडेड ऑफ द प्लाज्मा सेल, ठीक है, that is known as myeloma tumor. And myeloma tumor produces monoclonal antibody. Monoclonal antibody means identical antibody, copies of antibody, okay. Now in that antibody, that monoclonal antibody, they do not fight against a foreign particle, and they are very harmful, okay. They can also damage the kidney also. So that means it is the abnormal form of antibody. And normally immunoglobulin made up of two light chain and two heavy chain. This much you know now. So in case of benzoin protein and nothing else, these proteins are the light chain of the monoclonal antibody. See, हम लोग को ये पता है एंटीबॉडी में दो लाइट चेन होता है, दो हैवी चेन होता है, ठीक है। लाइट चेन आर नोन एज लैम्डा एंड कप्पा। इन केस ऑफ बेंजोन प्रोटीन क्या है एक्चुअली, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, जो एबनॉर्मल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है उसका ये लाइट चेन वाला पार्ट है बेंजोन प्रोटीन, ठीक है। आई थिंक दिस मच इज क्लियर व्हाट इज बेंजोन प्रोटीन। या आई हैव टू रिपीट अगेन। See, procedure is also very simple, okay, but before that you have to know about what is actually benzoin protein है क्या actually, ठीक है। what is the meaning of benzoin protein, then production of benzoin protein. Is this okay for you? I have to repeat again. Okay, fine. Repeat, ma'am. Okay, fine. See, in case of normal individual, no, just remember there is a cell that is known as plasma cell, ठीक है। That plasma cell are mainly responsible for the production of antibody, and we all know what is the function of antibody, right? Antibodies क्या करता है एक्चुअली, जो फॉरेन पार्टिकल्स है एंटीजन है उसके साथ फाइट करते हैं, ठीक है, और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंटीबॉडी। But we all know that benzoin protein urine test normally we
do for diagnosis of the multiple myeloma. So before that we have to know what is multiple myeloma. It is a one type of blood cancer. ठीक है, तो multiple myeloma में क्या होता है, जो प्लाज्मा सेल होता है वहाँ पे क्राउडेड होता है, ज्यादा अमाउंट का प्लाज्मा सेल होगा एंड दैट इज एबनॉर्मल. ठीक है, तो दैट एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल और कैंसरस प्लाज्मा सेल नॉर्मली प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. दैट मीन्स सेम टाइप का आइडेंटिकल कॉपीज बनाएगा एंटीबॉडीज का. दैट मीन्स बहुत सारा एबनॉर्मल एंटीबॉडी वो प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, और दैट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर वेरी हार्मफुल है बॉडी के लिए, और वो किडनी को भी डैमेज कर सकता है, और जितना भी फॉरेन पार्टिकल आएंगे ना उसको उससे प्रोटेक्ट भी नहीं करेंगे. ठीक है, that is all about your abnormal antibody. Now come to structure of antibody. So there's a basic structure of antibody. Then in structure we have two heavy chain. That means in नीचे का जो part होता है ना उसको बोलते हैं heavy chain. ठीक है, we have two heavy chain and two light chain. Please mute your mic. So benzoin proteins are a light chain part of the monoclonal antibody. That means जो ये light chain है, लंबा और कप्पा मैंने बोला, these are the benzoin protein. ठीक है, benzoin protein में normally हम लोग को ये डिटेक्ट करना है कि light chain यूरिन में है कि नहीं. ये heavy chain हम लोग को नहीं देखना है. ठीक है, जो benzoin protein हम लोग एनालाइज करेंगे तो हम लोग को ये देखना है कि उस सैंपल में ये लाइट चेन प्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ. दैट मीन्स प्रेजेंट है कि नहीं है. दिस मच ओनली. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. तो आफ्टर दैट तो ये लाइट चेन दैट मीन्स लाइट चेन वाला पार्ट यूरिन में कैसे मिलते हैं हम लोग को. ठीक है, वी ऑल नो यूरिन को कौन फिल्टर करता है, किडनी. तो दिस लाइट चेन प्रोटीन आर वेरी स्मॉल. ठीक है, इतना स्मॉल है कि इजीली किडनी फिल्टर करते हैं उसको, और फिल्टर होने के बाद ये डायरेक्टली जाके हम लोग को यूरिन में मिलता है इन केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा ओनली. ठीक है, ये लाइट चेन जो है बहुत मतलब स्मॉल पार्टिकल्स है, और ये इसीलिए किडनी डायरेक्टली फिल्टर करके हम लोगों को ये यूरिन में मिलता है. तो नाउ देयर आर सम क्राइटेरिया इन केस ऑफ लाइट चेन. तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि लाइट चेन प्रेजेंट है कि नहीं इन दैट सैंपल, राइट. सो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द benzoin protein. मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है, फर्स्ट वी गेट दिस सेल बी लिम्फोसाइट. तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड तुम लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा. फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर देयर इज स्टेम सेल दैट इज नोन एज हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल. ठीक है, फ्रॉम दैट स्टेम सेल टू डिवीजन होगा. एक मिलेगा तुम लोगों का माइलोमा, माइलोसाइट दैट मीन्स, और एक लिम्फोसाइट. ठीक है, तो लिम्फोसाइट वाला जो पार्ट होगा उसका फिर दो डिवीजन होगा, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. तो बी लिम्फोसाइट वाला पार्ट में से हम लोग को ये प्लाज्मा सेल मिलेगा. ठीक है, तो प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे. एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के बाद हम लोग को पता है एंटीबॉडी में लाइट चेन भी है, हैवी चेन भी है. तो नॉर्मली बेंजोन प्रोटीन क्या है, लाइट चेन वाला पार्ट, लैम्डा एंड कप्पा. मैंने बोला लैम्डा एंड कप्पा. तो ये लाइट चेन जब यूरिन में प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स वी कैन से that protein is known as benzoin protein, and the person might be suffering from the multiple myeloma. There is a stem cell known as hematopoietic stem cell. Okay, from that stem cell we get myelocyte and lymphocyte. Myelocyte is different thing. Okay, from myelocyte we get our RBC and all. So forget about the myelocyte, we're talking about benzoin protein. So from that stem cell normally that lymphocyte वाला जो मैंने बोला है, that lymphocyte से हम लोगों को मिलेगा दो टाइप का lymphocyte. One is B lymphocyte, one is T lymphocyte. From that B lymphocyte, we get our plasma cell, and the plasma cell produce antibody. And we all know in structure, antibody there are two light chain and two heavy chain. ठीक है, and benzoin protein जो है वो light chain वाला part होगा जो हम लोगों को यूरिन में मिलेगा, because ये easily filter होता है through kidney. तो उसी को बोलते हैं benzoin protein. That means benzoin proteins are the light chain part of the antibody. Okay, is it clear?
Is it clear? This is the introduction of the benzone protein. Is it clear for you? Yes, ma'am. तो यहाँ पे वही लिखा है. नॉर्मली ये मल्टीपल माइलोमा के लिए कहते हैं हम लोग. ओके. सो देयर आर सम स्पेशल क्राइटेरिया इन केस ऑफ लाइट चेन. ओके, तो हम लोग कैसे पता चलेगा ना. तो क्या होता है, they precipitated on heating urine around 60 degree centigrade. That means ये लाइट चेन जब प्रेजेंट होगा यूरिन में, वो प्रेसिपिटेट होगा जब हम लोग यूरिन को बॉईल करेंगे अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड. बट अगर वो हम लोग फिर से हीट करेंगे, सपोज हम लोग 60 डिग्री तक हीट किया, उसके बाद हम लोग वो 100 डिग्री तक हीट करेंगे, तब क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट वहां पे प्रोड्यूस हुआ था, वो सॉल्युबल और डिसॉल्व हो जाएगा. दैट मीन्स सैंपल फिर से क्लियर हो जाएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट अगेन इफ यू रिड्यूस द टेम्परेचर, 100 डिग्री में हम लोग बॉईल किया था, तब क्या मिला था, जितना भी वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था वो क्लियर हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है. बट नेक्स्ट स्टेप, अगर हम लोग फिर से वो टेम्परेचर कम कर दे, रिड्यूस कर दे, फिर रिड्यूस द टेम्परेचर तो अगेन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, देन व्हाट हैपन, दे अगेन प्रेसिपिटेटेड. दैट मीन्स अगर हम लोग वो टेम्परेचर रिड्यूस कर देंगे 60 डिग्री तक, तब फिर से प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होगा. देन लास्टली अगर हम लोग रूम टेम्परेचर में रख देंगे सैंपल को, तब वो प्रेसिपिटेट फिर से मतलब सॉल्युबल और डिसअपियर हो जाएगा. दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द लाइट चेन. सी, दे प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग अराउंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड. प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे अगर हम लोग उसको 60 डिग्री तक हीट करेंगे. ठीक है. देन ऑन फर्दर हीटिंग, दैट मीन्स अगर हम लोग फिर से उसको हीट करेंगे, सपोज 100 डिग्री तक हम लोग को उसको हीट कर रहे हैं, तब क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था 60 डिग्री में, वो डिसॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. देन अगेन अगर हम लोग टेम्परेचर रिड्यूस कर देंगे, सपोज वी रिड्यूस द टेम्परेचर अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, देन क्या होगा, प्रेसिपिटेट फिर से फॉर्म होना स्टार्ट करेंगे. और अगर हम लोग वो सैंपल ऐसे रूम टेम्परेचर में रख देंगे, तो क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था 60 डिग्री में, वो डिसॉल्व हो जाएंगे. दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द बेंजोन लाइट चेन. तो लाइट चेन हम लोग कैसे पता चलेगा, एक्चुअली इट इज द प्रोसीजर ऑफ द बेंजोन प्रोटीन ओनली. ओके, तो पहले सपोज हम लोग यूरिन लेंगे, उसको हीट करेंगे अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तब प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वहां पे. प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के बाद अगर फिर से हम लोग वो सैंपल को 100 डिग्री तक बॉईल करेंगे, तब क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था वो डिसॉल्व हो जाएंगे. देन अगर फिर से हम लोग इफ यू रिड्यूस द टेम्परेचर अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड अगेन, तो क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था वो फिर से फॉर्म होना स्टार्ट होंगे. और अगर फिर से हम लोग टेम्परेचर रिड्यूस करके रूम टेम्परेचर तक रख देंगे, तब क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था 60 डिग्री में, वो फिर से डिसॉल्व हो जाएंगे. तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द लाइट चेन, और इसी के हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे वेदर द बेंजोन प्रोटीन इज प्रेजेंट और नॉट. ओके. See, it is written here. The name of the method is thermal method, or sometimes we can say heat coagulation method also. See, normally हम लोग जब प्रोटीन टेस्ट स्टडी किया था, तब क्या बोला था, जब हम लोग हीट करेंगे प्रोटीन को, तो प्रोटीन डीनेचर होगा, उसके बाद वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. राइट. दैट इज ऑल अबाउट योर नॉर्मल प्रोटीन. और जितना भी तुम लोग मतलब वहां पे उसको रखो, हीट करो, वो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था वो डिसॉल्व नहीं होंगे. दैट इज ऑल अबाउट इन केस ऑफ मतलब नॉर्मल प्रोटीन. नॉर्मल प्रोटीन अगर हम लोग चेक करेंगे, तो क्या करेंगे, सैंपल लेके वहां पे बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे, डीनेचर होगा, उसके बाद वहां पे कोआगुलेशन और क्लाउडी टाइप का मतलब सैंपल मिलेगा हम लोग को, प्रेसिपिटेट होगा. ठीक है. अगर वो प्रेसिपिटेट हम लोग ऐसे ही रख देंगे या बॉईल जो भी करेंगे ना, वो प्रेसिपिटेट ऐसे ही रहेंगे अगर प्रोटीन प्रेजेंट है उसमें तब. बट इन केस ऑफ बेंजोन प्रोटीन हम लोग को ये चेक करना है कि वेदर लाइट चेन आर प्रेजेंट और नॉट, बिकॉज लाइट चेन आर अ बेंजोन प्रोटीन. तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले यूरिन को अगर 60 डिग्री तक हीट करेंगे, तब क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. और ऑन फर्दर हीटिंग अगर हम लोग दैट मीन्स 100 डिग्री तक उसको बॉईल करते हैं, तब क्या होगा, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएंगे. और अगर हम लोग फिर से टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया, दैट मीन्स अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तब वो प्रेसिपिटेट अगेन फॉर्म होगा.
और अगर फिर से हम लोग वो टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं अप टू रूम टेम्परेचर, देन प्रेसिपिटेट फिर से डिसॉल्व हो जाएंगे. That is a special criteria or character of the light chain. Okay. So this is all about your benzone protein. See, in case of procedure ना, procedure मैंने already बोला है, but still हम लोगों को sample लेना है. ठीक है. sample लेने के बाद जो हम लोग प्रोटीन नॉर्मली प्रोटीन में करते हैं ना, हम लोग को बॉईल करना है. ठीक है. बट वन थिंग रिमेंबर, हम लोग को इन केस ऑफ बेंजोन प्रोटीन यूरिन को पहले एसिडिफाई करना है. दैट मीन्स इन दैट सैंपल फर्स्ट वी एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड. ठीक है. आफ्टर दैट वी हीट द यूरिन सैंपल, और हीट करने के बाद अगर वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, इफ द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, दैट मीन्स हम लोग उसको क्या करेंगे, उस सैंपल को कूल होने के लिए रख देंगे फॉर फ्यू मिनट्स. आफ्टर दैट वी हैव टू फिल्टर दैट सैंपल. तो फिल्टर होने के बाद अगर नॉर्मल प्रोटीन जितना भी होगा वो फिल्टर पेपर में रह जाएंगे. ठीक है. मैंने ऑलरेडी बोला बेंजोन प्रोटीन्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल, तो ये इजीली फिल्टर होके सैंपल में मतलब पहुंच जाएंगे. तो उस फिल्ट्रेशन को लेके हम लोग को क्या करना है, उसको हीट करना है, जो मैंने अभी प्रोसेस बोला है. पहले हम लोग 60 डिग्री तक हीट करेंगे. 60 डिग्री तक हीट करने के बाद फिर से वो टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देंगे, रेज करेंगे अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जितना भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था 60 डिग्री में, वो डिसॉल्व हो जाएंगे. देन अगेन हम लोग उस सैंपल को टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड. 60 डिग्री में क्या होंगे, जो प्रेसिपिटेट था डिसॉल्व हुआ था 100 डिग्री में, वो फिर से वहां पे स्टार्ट होना मतलब स्टार्ट होंगे. तो हम लोगों को यहाँ पे प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे, अपेयर होगा वहां पे प्रेसिपिटेट. और लास्टली अगर उस टेम्परेचर को हम लोग रूम टेम्परेचर के साथ मतलब सेम कर देंगे, तब क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट 60 डिग्री में फॉर्म हुआ था उसका मतलब वो डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग को ये पता चलेगा मतलब लाइट चेन प्रेजेंट है कि नहीं है. मैम, या इफ 60 डिग्री में प्रेसिपिटेट मिल जाएगा तो 100 डिग्री क्यों करेगा वापस? because that is the criteria of the light chain. मैंने पहले वही बोला था ना. ठीक. this is the procedure, okay, but there are some criteria of the light chain. तो हम लोग को ये लाइट चेन डिटेक्ट करना है कि नहीं. तो हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे, देयर आर सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट चेन. अगर हम लोग उसको हीट करेंगे 60 डिग्री तक, तब वो हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. नॉर्मली भी प्रेसिपिटेशन होता है प्रोटीन में, है कि नहीं, हीट करने के बाद. तो हम लोग को यहाँ यस पे मैम. ये चेक करना है कि लाइट चेन प्रेजेंट है कि नहीं. तो लाइट चेन नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लोग पहले उसको हीट करेंगे अप टू 60 डिग्री, एक रेंज दिया हुआ है यहाँ पे, तो वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे. अगर हम लोग फिर से उसको हीट करेंगे, दैट मीन्स हीट थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, सपोज अप टू 100 डिग्री, तब क्या होंगे, वो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था ना, वो डिसॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. नॉर्मली नॉर्मल प्रोटीन में डिसॉल्व नहीं होते हैं. और अगर फिर से हम लोग उस टेम्परेचर को मतलब डिक्रीज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे अप टू 60 डिग्री, तो क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट क्लियर हुआ था ना 100 डिग्री में, वो फिर से अपेयर होना स्टार्ट होंगे. और अगर फिर से हम लोग टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं, सपोज रूम टेम्परेचर हम लोग लेके आएंगे, तब वो प्रेसिपिटेट ना फिर से अपेयर होगा. तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द लाइट चेन. ठीक है. हम लोग को एक लाइट चेन का क्राइटेरिया दिया हुआ ही है, हम लोग वी कैन नॉट चेंज दैट वन. तो उसी के हिसाब से हम लोग को ये देखना है कि उस सैंपल में लाइट चेन प्रेजेंट है कि नहीं. अगर लाइट चेन प्रेजेंट है, दैट मीन दैट लाइट चेन है बेंजोन प्रोटीन ओनली. ओके. मैम, 100 डिग्री में नहीं करने से भी होगा? दैट मीन्स no, we have to increase the temperature to check whether it is light chain or normal protein है. सी, नॉर्मली अगर हम लोग प्रोटीन टेस्ट करेंगे तो हीट कर, जो भी करो ना, हीट करो या कुछ भी करो, तो वहां पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना, वो डिसॉल्व नहीं होता है. ठीक है. बट इन केस ऑफ बेंजोन प्रोटीन, अगर हम लोग टेम्परेचर थोड़ा मतलब इंक्रीज कर देंगे, तब क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था ना, वो मतलब डिसॉल्व हो जाएंगे सैंपल में, प्रेसिपिटेट क्लियर हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट नहीं होंगे वहां पे. तो फिर से हम लोग को अगर ये चेक करना है कंफर्मेशन के लिए, हम लोग क्या करेंगे, फिर से टेम्परेचर रिड्यूस कर देंगे 60 डिग्री तक. ठीक है. तब जो क्लियर वाला सैंपल हम लोग को मिला था 100 डिग्री में, तब रिड्यूस करने के बाद टेम्परेचर फिर से वहां पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. और फिर से अगर हम लोग रूम टेम्परेचर में रख देंगे सैंपल को,
तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन फिर से क्लियर हो जाएंगे। तो इसीलिए बेंजोइन प्रोटीन चेक करने के लिए ये स्टेप हम लोगों को करना ही है, ये हम लोगों ने नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है लाइट चेन का। तो बेंजोइन प्रोटीन एनालिसिस के लिए एक्चुअली ये स्टेप हम लोगों को करना ही पड़ेगा। तो पहले from the beginning what we will do, we just add few drops of acetic acid in the urine sample, ठीक है। यूरिन सैंपल ऐड करने के बाद हम लोग को प्रोटीन को हीट करना है, बिकॉज हम लोग को पता है प्रोटीन एसिडिक मीडियम में डीनेचर होता है, कोagulation होता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग को पहले सैंपल में एसिटिक एसिड ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स, आफ्टर दैट वी हैव टू हीट दैट सैंपल। हीट करने के बाद प्रेसिपिटेट हो गया सपोज, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको ठंडा होने के बाद हम लोग फिल्टर करेंगे फिल्टर पेपर में। तो जितना भी नॉर्मल प्रोटीन वहां पर प्रेजेंट था तो वो फिल्टर पेपर में रह जाएंगे। लाइट चेन आर वेरी स्मॉल, इसीलिए वो फिल्टर होके वो फिल्ट्रेशन में रह जाएंगे, सैंपल में मतलब फिर से आ जाएंगे। तो उसी सैंपल को लेके हम लोग को ये स्टेप मतलब परफॉर्म करना है आफ्टर फिल्ट्रेशन। ओके, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ द बेंजोन प्रोटीन। तो प्रोसीजर हम लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब अगर ये क्राइटेरिया हम लोग को उस सैंपल में भी दिखाई देता है, दैट मीन्स बेंजोन प्रोटीन प्रेजेंट इन दैट सैंपल, ठीक है। बट वन थिंग रिमेंबर, बेंजोन प्रोटीन इज अ स्पेसिफिक टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट को लेके हम लोग मल्टीपल माइलोमा डायग्नोस नहीं कर सकते। तो आजकल ये पुराना वाला, बहुत पुराना वाला टेस्ट है मतलब, ठीक है। तो आजकल बेंजोन प्रोटीन नॉर्मली परफॉर्म नहीं भी करते हैं लेबोरेटरी में। तो हम लोग आजकल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ठीक है। दिस इज द एडवांस टेक्निक टू आइडेंटिफाई द मल्टीपल माइलोमा। बट स्टिल हम लोग के सिलेबस में है तो हम लोग को ये पढ़ना ही है। तो बट ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, सिर्फ ये टेस्ट करके हम लोग मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोस नहीं कर सकते। बट दिस टेस्ट इज मेनली परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द बेंजोन प्रोटीन ओनली। और बेंजोन प्रोटीन कब मिलेगा, जब पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा होंगे, ठीक है। बट ये स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बेंजोन प्रोटीन। दिस ओके फॉर यू या आई हैव टू रिपीट अगेन? से जो स्टेप मैंने बोला है वो हम लोग को परफॉर्म करना ही होगा इन केस ऑफ बेंजोन प्रोटीन। तो मैंने बेंजोन प्रोटीन क्या है बोल दिया ऑलरेडी। दीज आर द लाइट चेन पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी। देयर आर टू लाइट चेन, वन इज कप्पा एंड वन इज लैम्डा। और कौन प्रोड्यूस करता है? प्लाज्मा सेल। नॉर्मली प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। But in case of multiple myeloma, the plasma cell, the abnormal plasma cell, that means cancerous form of plasma cell produce abnormal antibody, monoclonal antibody, and Benjon proteins are the light chain part of the monoclonal antibody. जो abnormal antibody, बहुत सारे abnormal antibody produce करेंगे तो उसका light chain वाला part होगा Benjon protein। और ये इतना small होता है कि किडनी भी उसको filter कर देता है, इसीलिए हम लोग को यूरिन में मिलता है ये। Okay, I think it is clear for you.